So let's start and welcome again to all of you. Photoperiodic or means sunlight. Photo means sunlight. The variation duration of sunlight at the different places is due to different in latitude, because everywhere sunlight is not an equal. The areas which is surrounded by the mountains, that will receive less sunlight. जो एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है वहाँ सनलाइट कम होगी, एंड द एरिया विच इज़ हैविंग no mountains, that will receive more and more sunlight is there. So that is also affects a lot the altitude, season and duration of the day. Due to the longer duration of sunlight, trees grow faster in the summer. कहता है जिन एरियाज में धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ ट्रीज जो होते हैं वो ज़्यादा फास्टर ग्रो करते हैं. प्रेसिपिटेशन मीन्स द रेनफॉल इन इंडिया. So next is a precipitation. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon. Means in India, the shower comes from the southwest monsoon. The southwest monsoon is a area that is a Arabian Sea. जो हमारा Arabian Sea है, that is in a southwest area. So ज़्यादातर बारिश उसी मानसून से होती है, जून टू द सितंबर. एंड रीट नॉर्थ ईस्ट मानसून. एंड रीट जो है जब मानसून का विड्रॉ होता है तो दैट इज़ द टाइम द रेनफॉल कम्स इन द रीट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है. एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन. द एरिया विच रिसीव्स मोर एंड मोर रेनफॉल, जिस एरिया में बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है, दैट आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ डेंस वेजिटेशन. तो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, और जिन एरिया में कम बारिश होती है. हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. आप जानते हैं कि कभी या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन द एनहांसिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट की क्वालिटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए दे प्ले मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. यू नो दैट दे गिव्स अस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉडिफाई द local climate, also control the erosion. There are so many works are there, and that is why they are very very vital for us. They modify the local climate, control the erosion, regulate stream flow, suppose a variety of industries. There are so many industries which are directly depend on the forest, provide livelihood to many communities, because so many communities they are also living in those forested area and offer panoramic or scenic view of the recreation. मतलब उस एरिया को एक रिक्रिएशन व्यू प्रोवाइड करती हैं. दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड काज रेंज, एंड दे आल्सो control the wind and its force, and also control the temperature and causes rainfall. All these things are there of the forest. They provide humans to the soil and shelter to the wildlife, and all these things we also get. And wildlife, it is a home of wildlife, the forest. India's natural vegetation has undergone in many changes due to the several factors. मतलब आज हमारा जो वेजिटेशन है वो कई वजहों की कई उसकी वजह बन चुकी हैं, जिसकी वजह से वो डिग्रेडेड होता जा रहा है. सच एज द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. दिन प्रतिदिन जो कृषि योग्य ज़मीन है वो और कल्टिवेटेड लैंड है उसको बढ़ाया जा रहा है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग जो है बढ़ती जा रही है. इंडस्ट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है. अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर. शहर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं. ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर भी जो है वो उसकी कमी होती जा रही है. द वेजिटेशन कवर्स ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो more natural in the real sense. The vegetation covers of India, the vegetation of India in a large part is no more natural in the real sense, except in some inaccessible region like the Himalayas or hilly regions or central India and the Marusthali. The vegetation in most of the area has been modified on some places or replaced or degraded by the human occupancy. मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से आज बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर दैट है मीन दैट फॉरेस्टेड लैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड और सम अदर फॉर अदर पर्पसेस इट हैज़ बीन कन्वर्टेड. बट सम एरियाज दैट द हिमालय एरियाज और द डेजर्टेड एरियाज हेयर स्टिल natural vegetation is still pending there in the area of Madhya Pradesh. So these are the areas which is still under the forested. So
दीज आर द ड्यू टू द ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, मतलब ह्यूमन की ऑक्यूपेंसी की वजह से, या हम लोग जो है वो हमारी नीड एंड ग्रीड हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया जो कल्टिवेटेड लैंड के अंदर जो बढ़ता जा रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड या नेचुरल एरिया जो है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं।